Hello everyone in the Ansakari, and today we are going to wind up the judicial aspect of the Indian Constitution, where we started from the Supreme Court, then the High Court, then the subordinate courts, and then the various institutional aspects like PP, what is PP, what are the procedural aspects about the PP, its power, and then in the last ADR, that is a alternate dispute resolution mechanism, where we talked about the tribunals. And one of my friend was asking yesterday a question about the MPs and MLA court. So I would like to highlight here that MP MLA courts are the special courts which are constituted on the frequent basis to decide only the cases regarding the electoral matters of the MPs and MLA. And the Ministry of Justice has a specialized department, that is Department of Justice, which provides the mechanism for establishment of such courts on the ad hoc basis. So they are not temporary courts, and in the case there is no infrastructure capacity available to establish such kind of courts at a moment, then the already established district courts can be assigned the similar kind of responsibility to deal such kind of disputes regarding the MPs and MLAs electoral matters. So now we are talking about what are the various issues faced by the tribunals in India. So number one, conflict of interest, where yesterday we were talking that some matters lies within the higher courts, within the Supreme Courts, within the uh, other judicial institutions. But when the matters reaches out to the tribunals, so that leads to the conflict of interest. And appointment and removal process is also highly politicized in the tribunals because the executive role is lying here. Then the tribunalization of justice, which simply means that sometimes the tribunal takes the power from the ordinary court, and that is against the principle of separation of power. Example, NGT versus Supreme Court, where NGT is saying that on the Yamuna there should be a 10 crores penalty over the industrialists who have established their industrial production houses on the periphery of the Yamuna River in the Delhi NCR region. So the Supreme Court is denying that and saying that NGT should not impose such kind of heavy penalties on the industrialists because they are also taking some sort of CSR functions in the other areas, and that is uh, we can say that is minimizing the impact on Yamuna by those industrialists. Number third, lack of independence. Because the appointment, salaries, everything is decided by the government, by the executive. So judges do not have such sort of independence in the tribunals when we compare it with the higher judiciary. In the jurisdiction of high courts, on the Chandra Kumar case 1997, the basic crux is that before the Chandra Kumar case, the tribunal's jurisdictions, the tribunal's verdicts, the tribunal decisions were not subjected to the judicial review. But post 1997, in the Chandra Kumar case, the court highlighted that henceforth the actions of the tribunals will be subject to the judicial review, though the nature will not be a binding of such kind of decision given by the tribunal. Then pendency we have, which is highlighted by various law commission reports, not only the 272 report, but various other reports like of bar reports, high number of pendencies lies. Then if we talk about what reforms can we take so that the tribunal can function effectively. So we require a national tribunal commission as a constitutional body so that it can ensure that all the tribunals work in efficient manner, their management, their appointment, their records, their decisions, everything should be discussed via their annual report on the floor of the Parliament House. So National Tribunal Commission should be constituted as a constitutional body. Number two, timely appointment should be done. And again here, there should also be a recommendation criteria by a specialized committee to appoint judges in the tribunals. इंडिपेंडेंस के अंदर हमने बात की कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए एंड रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, यानी जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके 16 बेंचेस जो हैं उन 16 बेंचेस से अलावा भी अलग अलग बेंचेस हर सिटी के अंदर बनने चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनने चाहिए. एंड ऑब्वियसली वी कैन से दैट डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रिब्यूनल्स क्रिएशन शुड बी देयर सो एज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इटसेल्फ. So ADR, every tribunal is a part of ADR, but what ADR is? So ADR is we can say ADR is a normative concept. ADR is a philosophical concept which is giving the way for such kind of institutions in the form of tribunal. तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी जो नॉर्मल प्रोसीजरल कोर्ट है, जो नॉर्मल जुडिशियल सेटअप है, उससे बाहर भी आपको कानूनी सहायता दी जा सकती है अंडर आर्टिकल 13A, दैट इज फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड डिजर्विंग कैंडिडेट्स.
सो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी आर्टिकल 323A, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी अंडर आर्टिकल 323A, एंड अदर ट्रिब्यूनल्स ऑफ एनी काइंड अंडर आर्टिकल 323B, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ ADR। अगर हम बात करें लिटिगेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं क्या क्या है? कंजेशन इन कोर्ट्स ड्यू टू न्यूमरस लिटिगेशन। लिटिगेशन का हिंदी होती है मुकदमेबाजी। मुकदमेबाजी जो वकालतनामा पास होने के बाद चालू होती है। वकालतनामा क्या होता है? आपके ऊपर कोई भी केस रजिस्टर हुआ बाय द पुलिस विभाग, उसके बाद आप जो है वकील हायर करते हैं, वकील जो है आपकी एक फाइल बनाते हैं और उसको बोला जाता है लिटिगेशन फाइल। यानी वो कोर्ट के अंदर लगेगी, आपको कानूनी सहायता मिली है और आपके जो वकील है वो आपके लिए केस लड़ेंगे और आपको कानूनी प्रोटेक्शन दी गई है। तो बहुत सारी लिटिगेशन होती है जिससे कंजेशन हो जाता है, कोर्ट में प्रोसीडिंग में डिले होता है। दूसरा, मैन पावर और रिसोर्सेज की कमी है नॉर्मल कोर्ट के अंदर ही और ट्रिब्यूनल के अंदर भी। हाई कॉस्ट है लिटिगेशन की बड़ी वाली कोर्टों में। जब हम बात करते हैं एक हियरिंग की जो केस है वो करीब करीब 50 लाख भी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजेस की। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा हाई कॉस्ट ऑफ जुडिशरी, हाई कॉस्ट ऑफ जस्टिस हमारे इंडिया में है। तो इसको कम करने के लिए भी एडीआर एक एफिशिएंट मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है। अगर हम और बात करें एडवांटेज क्या है, तो जल्दी से न्याय मिल जाता है, कम टाइम लगता है, पैसा कम लगता है क्योंकि प्रोसीजरल एस्पेक्ट को ढीला किया गया है, ज्यादा कानूनी कागजों की जरूरत नहीं होती है, एफिडेविट स्टैम्प पेपर ये नहीं चाहिए होता है। इसके बाद कोर्ट की जो टेक्निकलिटी होती है उससे दूर। कोर्ट की टेक्निकलिटी क्या है कि आपको डेट मिलेगी, डेट मिलने के बाद आपका नाम आएगा, उसके बाद आपके वकील का रजिस्ट्रेशन होगा। तो इतने सारे टेक्निकलिटी से हटकर यहाँ पर क्या है कि आप खुद भी अपना डिस्प्यूट लड़ने आ सकते हैं कोर्ट के अंदर, आप अपने वकील के थ्रू भी आ सकते हैं, और आप अपने सोशल जो आपका सोशल ऐसे जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनके तहत भी अपना केस लड़वा सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल कोर्ट होते हैं उनके डिसीजन के ऊपर कमेंट करना आम आदमी के लिए जो है बैन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप ट्रिब्यूनल के जो डिसीजंस हैं उनके बारे में उनको फेयरली क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, और ऐसा कोई डर नहीं है आपको कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट का केस लगेगा। इसके अलावा जो पार्टीज हैं, पार्टीज के आपस में म्यूचुअल रिलेशन क्रिएट हो जाते हैं, जल्दी से सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन नॉर्मल कोर्ट के अंदर सेटलमेंट का प्रोविजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कोर्ट के अंदर आप जजेस जो है उनको इनकॉर्पोरेशन में लेकर सेटलमेंट नहीं करा सकते, वकीलों के थ्रू ही होगा। लेकिन यहाँ पर ट्रिब्यूनल के अंदर आप जजेस को भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, और जो दोनों पार्टीज हैं वो सहमति बनाकर जजेस की परमिशन ले लेते हैं कि ठीक है यही केस सेटल कर दो, रफा दफा कर दो। अब एडीआर का अगर हम फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट देखें फंडामेंटल राइट से, तो कहां से आता है? आर्टिकल 14 इक्वालिटी एंड आर्टिकल 21 दैट इज लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज। यहाँ से जो है एडीआर जिसके अंदर हम बात करते हैं राइट टू लाइफ, जो कि एक यूनिवर्सलाइज हम बोल सकते हैं ऐसा राइट है जिसके अंदर हर तरीके का राइट आता है, शादी से लेकर के, और आप किस तरीके से रहना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर आर्टिकल 21। तो आपको जस्टिस भी मिलनी चाहिए, आपका एनवायरनमेंट भी साफ होना चाहिए, आपके साथ डिरोगेशन भी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज आर्टिकल 21 बात करता है। तो हम बोल सकते हैं कि एडीआर इज आल्सो कमिंग एंड डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड 21। सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करता है कैसे? अलग ट्रिब्यूनल होते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस को आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं उनके ऊपर आपको न्याय मिलता है। और 39 है डीपीएचपी के अंदर हमने देखा, जो कि एक हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। हमने बात की थी कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो सीपीसी का जो प्रोविजन होता है उसको उसके अंदर रिलैक्सेशन होती है इनके लिए। और लेकिन सीपीसी यानी सिविल पावर की, सिविल कोर्ट की पावर भी होती है। क्या क्या पावर होती है सिविल कोर्ट की? समन कर सकते हो, विटनेस के लिए बुला सकते हो, रिकॉर्ड मंगा सकते हो, एविडेंस ले सकते हो, ये सारी पावर है जो आप कर सकते हो। इसके बाद सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर ये मैकेनिज्म दिए जाते हैं आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड मीडिएशन के। आर्बिट्रेशन करवा सकते हो मामले का, कॉन्सिलिएशन सहमति, मीडिएशन बीच में दखल अंदाजी करके। तो मैटर को किसी भी मैटर को रफा दफा करने के लिए एडीआर जो है एक अ, सस्ता, एक आसान, लेस टेक्निकल, एफिशिएंट एंड टाइम एफिशिएंट मैकेनिज्म प्रूव हुआ है इंडिया के अंदर। और इसीलिए सबसे पहले तो आया था गुजरात के अंदर एज ए नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी, लेकिन विद इन 3 to 4 years इसको स्टेट्यूटरी स्टेटस भी पार्लियामेंट ने दिया, जब हम बात करते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट नालसा 1987।
तो अगर हम बात करें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, लोक अदालत, तो इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है? आर्बिट्रेशन, यहाँ पर जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है इन विच एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी नोन एज आर्बिट्रेटर, यानी किन दो बीच पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट है, थर्ड पार्टी को बुलाया जाएगा जो कि दोनों से रिलेटेड नहीं होगी, और वो उनके बीच में मीडिएशन कराएगी, मैटर को सॉल्व करेगी। इसके बाद मीडिएशन, मीडिएशन जो है यहां पर भी थर्ड पार्टी होती है, लेकिन that is neutral and assist the parties in using communication and negotiation strategies to resolve the conflict। यानी आर्बिट्रेशन के अंदर जो तीसरी पार्टी है वो डिसाइड करवा रही है डिस्प्यूट कैसे खत्म हो, लेकिन मीडिएशन के अंदर थर्ड पार्टी आकर के दोनों को सहमति दे रही है, दोनों को जो है सलाह दे रही है कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, आप दोनों खुद ही आपस में मैटर को रफा दफा कर लीजिए। यानी आर्बिट्रेशन में थर्ड पार्टी ने करवाया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लेकिन मीडिएशन के अंदर थर्ड पार्टी ने सिर्फ सलाह दी और दोनों पार्टी ने आपस में ही डिस्प्यूट सेटल कर लिया। और लोक अदालत हमने देख ही लिया, गुजरात के ऊना जो है, ऊना शहर है, ऊना हिमाचल में भी है और ऊना गुजरात में भी है। तो सबसे पहले ऊना के अंदर 1982 के अंदर आई और 87 के बाद इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस का दर्जा दिया गया। नालसा की हमने बात की, और सालसा डालसा, लोक हाई कोर्ट में कमेटी, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी, और डिस्ट्रिक्ट में जो है डालसा। अब अगर बात करें कंसिलिएशन, तो कॉन्सिलिएशन क्या होता है? ये नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है और इसमें भी थर्ड पार्टी की जरूरत होती है। तो कॉन्सिलिएटर यानी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी इज्जत है, जो बड़ी एक्सपर्टीज है उनकी किसी फील्ड के अंदर, जैसे कि महिला विभाग, महिला विभाग के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कॉन्सिलिएटर बनाया जा सकता है जब आप डिस्प्यूट, जो फैमिली डिस्प्यूट हो वो मैटर सेटल कर रहे हैं। या फिर कॉन्सिलिएटर कोई रिटायर्ड ट्रैफिक पुलिस के कमिश्नर है और ट्रैफिक चालान के लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है, आप उनको कॉन्सिलिएटर बना सकते हैं। इसके अलावा कोई पीएसयू है, उस पीएसयू के रिटायर्ड कोई डायरेक्टर ही है, लेकिन अभी जो पीएसयू की मैनेजमेंट और डायरेक्टर उनके बीच में आपस में इशू है, तो उनको बुलाकर कॉन्सिलिएशन कराया जा सकता है। तो कॉन्सिलिएटर थर्ड पार्टी जो कि हैविंग एन एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर फील्ड कैन बी कॉल्ड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट। और नेगोशिएशन हमें पता ही है, नेगोशिएशन के अंदर ये भी नॉन बाइंडिंग होता है जिसमें आपस में सलाह की जाती है और थर्ड पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं होता, यानी आपस में दोनों पार्टी आपस में सेटल करने की बात करेंगी, नेगोशिएट करेंगी। और ये जो है देखने को मिलता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में नेगोशिएशंस होते हैं एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट ब्रांचेस में। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, तो हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल सेंटर भी है फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो ऑटोनोमस बॉडी है और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अंदर के अंदर रजिस्टर्ड है। अब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो क्या होती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960? तो आई थिंक जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो ही इस चीज को डील करता है, जिसके अंदर कुछ होती है एलएलपीज, कुछ होती है प्राइवेट कंपनीज, कुछ होती है लिमिटेड कंपनीज, और कुछ ऐसी होती हैं जो ट्रस्ट होते हैं। और ट्रस्ट के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको सोसाइटी के अंदर उनका बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है। तो सोसाइटीज के एस्पेक्ट को डील करने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक्ट है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। And this is very important for the prelims exam because a number of times we have seen the direct questions on various international and national bodies coming from the Society Registration Act 1860। तो ये जो इंटरनेशनल सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर है। चेयरमैन जो है इसके मिनिस्टर होंगे, जो अभी में श्री किरण रिजिजू, करंट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इनका काम क्या होगा? वही नालसा को, सालसा को प्रमोट करना, एडीआर को प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा ट्रिब्यूनल सेटल करवाना, अलग अलग जो प्रोविजन है आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, नेगोशिएशन से लेकर उनका यूज करवाना ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर में। और कहां पर लोकेटेड है? दिल्ली में, और 2 रीजनल ब्रांच बेंगलुरु एंड हैदराबाद। तो एथिक्स क्या होना चाहिए एडीआर का? ये दिस इज नॉट आई थिंक सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पर यही है कि जो एडीआर है उसको ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म पर काम करना चाहिए, और जो लॉयर्स हैं उनको भी विदाउट हैविंग एनी प्राइवेट इंटरेस्ट सोसाइटल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। और हमारे यहाँ एक एक्ट भी है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, और मोस्टली ये जो एक्ट है डील करता है कंपनीज के बीच में आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन। अगर हम यूएन सिट्राल की बात करें तो यूएन सिट्राल इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, यानी जो कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, कमर्शियल हब्स हैं,
उनके बीच के जो आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन के मैटर हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट के मैटर हैं, वो यूएन सेंट्रल जो है एजेंसी, यूएन की आई थिंक ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। इसके बिहाफ पर हमारे यहाँ भी एक कानून बनाया गया 1996 के अंदर, जिसका नाम है आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलिएशन एक्ट 1996। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? कोर्ट के अंदर मामला मत लेकर जाइए, पहले ही ट्रिब्यूनल के अंदर सेटल करवाइए। दूसरा, स्पीडी डिस्पोज कराइए ताकि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें दिक्कत ना आए। तीसरा, एमिकेबल, स्विफ्ट एंड कोस्ट एफिशिएंट, यानी इन तीनों वर्ड का मतलब हम जानते ही हैं, तो एफिशिएंट सेटलमेंट होना चाहिए डिस्प्यूट का, जस्ट एंड फेयर मैनर में होना चाहिए। इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन है और जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, उन दोनों के बीच में जो है हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद अलग अलग प्रोविजन, अलग अलग मेथड है, मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, हर चीज का यूज होना चाहिए और एनफोर्सिएबल भी होना चाहिए विद द डिग्री ऑफ द कोर्ट। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019, आई थिंक ये इस्टेब्लिश शायद गुजरात के अंदर है, गिफ्ट सिटी के अंदर ही है शायद ये। तो ओशी कैन क्रॉस चेक दिस। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019, तो ये परमानेंट लेवल पर, एक नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा इंडियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो जितने भी आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मामले हैं, कंपनीज के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मामले हैं, ये सारे इसके अंदर जाएंगे। और मेरे हिसाब से गिफ्ट सिटी के अंदर ही लोकेटेड है, और न्यू दिल्ली डोमेस्टिक और में। वहां पर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। नई दिल्ली, ठीक है। हम्म। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कमर्शियल जितने भी मामले होंगे कंपनी से रिलेटेड, उनको डील करने के लिए हमारे यहाँ बनाया गया है। और इसके अंदर भी वही वाले मैकेनिज्म की कॉन्सिलिएट किया जाएगा, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन किया जाएगा। और इंटरनेशनल लेवल के स्पेशलिस्ट जो होंगे, सर्वेयर होंगे, इन्वेस्टिगेटर होंगे, उनको भी एज अ कंसिलिएटर जो है अपॉइंट किया जाएगा, रिसर्च एंड स्टडी को प्रमोट करेगा और इसी रिगार्ड में R&D जो है उसको प्रमोट करेगा। और चेयरपर्सन और जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। मीडिएशन बिल की अगर हम बात करें 2021, तो मीडिएशन हमने देखा कि आई थिंक मेडिकेशन और मीडिएशन अलग चीजें। तो मीडिएशन, तो कौन कौन से मैटर्स में मीडिएशन? प्राइवेट मैटर्स लाइक फैमिली मैटर्स, तो उसके लिए हमारे यहाँ पहले ही फैमिली कोर्ट 1984 एक्ट के अंदर, लेकिन फिर भी उनके अंदर अगर कोई सेटल नहीं हो पाता है तो मीडिएशन अपील डाल सकते हैं इस कोर्ट के अंदर। और राज्यसभा के अंदर ऐसा बिल है अभी, तो अभी देखते हैं, दिस इज इन द बिल फॉर स्टेज, नॉट एन एक्ट। So here are the questions. How far do you agree with the view that tribunals curtail the jurisdiction of ordinary courts? In view of the above, discuss the constitutional validity and competencies of the tribunals in India. So Ashik, आप बताइए, then I'll intervene. इसमें बोल सकते हैं कि ट्रिब्यूनल्स कर्टेल द जुरिडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट। तो इट हाउ फार डू यू एग्री? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ऑर्डिनरी कोर्ट है, दे टेक सेवरल टाइप्स ऑफ केसेस, जनरल होते हैं। लेकिन जो ट्रिब्यूनल है, ये स्पेसिफिक होते हैं। चाहे इनकम टैक्स हो गया, एपेलेट हो गया, चाहे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, या कैट हो गया, बाकी सब। तो वी कैन से दैट ट्रिब्यूनल हेल्प्स द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्ट रादर देन कर्टेलिंग, क्योंकि उनका जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है वो कम करता है। फिर उनका स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस होता है विथ रिस्पेक्ट टू द केसेस विच ऑर्डिनरी कोर्ट फेसेस चैलेंजेस इन। तो इसमें डील करता है। तीसरा, कि ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो दे आर अंडर द जुडिक्शन होता है, अंडर द, उनका जो अपील होता है दे गो टूवर्ड्स द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो वी कैन से दैट जो डिवीजन ऑफ पावर्स है बिटवीन द क्वाजी जुडिशियल और जुडिशियल स्ट्रक्चर इन इंडिया, इट इज वेल डिफाइंड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट। तो ऐसा नहीं बोल सकते मेरे हिसाब से, हाउ फार कर्टेल नहीं करता है, अगर ओवरऑल बोलूँ। ठीक है, तो अगर इन अ मैं इस व्यू क्वेश्चन की कॉन्स्टिट्यूशनल हाँ, वैलिडिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। तो वैलिडिटी जो बोलेंगे, इट इज ए क्वाजी जुडिशियल, वो एक्ट के अंदर ही बन सकता है या वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बन सकता है। जैसे कैट कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्ट एनजीटी हो गया, आईआरडीआई और बाकी जो भी होते हैं सब, एनसी एन क्लैट वो भी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सॉरी स्टैट्यूटरी हो गया, एन क्लैट, एनसी क्लैट। 2013। हाँ, 2013। तो कंपिटेंसी, कंपिटेंसी बोल सकते हैं कि जो ट्रिब्यूनल है उनके पास फाइनल सोल्यूशन नहीं है, जैसे लोक अदालत है।
अल्टीमेटली वहां से भी लोग जाते हैं हाई कोर्ट में, तो घूम फिर के हाई कोर्ट में ही जा रहे हैं। पहला बोल सकते हैं। सेकंड बोल सकते हैं कि जो बेंचेस है इंडिया में अंदर में, उनके अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट लोग चाहिए। जो ऐसे इंसॉल्वेंसी में देखा जाता है तो आईपीआर पीआर आईपीआर नहीं, हाँ आईपीआर प्रोफेशनल कमी है वहाँ पर। वैसे ही ट्रिब्यूनल में भी जरूरत है, मोर एंड मोर स्पेशलाइजेशन चाहिए। तीसरा बोल सकते हैं कि ट्रिब्यूनल का देखा जाता है एट बाय द सम एज अ पोस्ट रिटायरमेंट प्लान फॉर द जजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो एक इशू आता है। और आप ऐड करो प्रवेश। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की शुरुआत करनी है तो पहले हम ये बोलेंगे कि कॉन्टेम्पररी 3 या 4 ऐसे केसेस यहाँ पर देखा गया है कि ट्रिब्यूनल और ऑर्डिनरी कोर्ट के बीच में जो है जुरिस्डिक्शन की सेपरेशन ऑफ पावर की दिक्कत देखने को मिली। सबसे पहला एनजीटी। एनजीटी ने बहुत सारी ऐसी सम जो है वो लगाई है एनवायरमेंटल जस्टिस के नाम पर, जिसकी वजह से प्ली जो है बढ़ गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरा, इनकम टैक्स अपील। इनकम टैक्स की जो ट्रिब्यूनल है, कई बार देखा है कि इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल की जो जुरिस्डिक्शन है, जो वर्डिक्ट है, उसके देने के बाद भी हाईएस्ट अपील आप मिनिस्ट्रीज के अंदर कर लेते हैं और फिर आप कोर्ट के अंदर करते हैं। और तीसरा, हमने कल ही बात की थी कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन है दूसरी सर्विस का एग्जाम देने के लिए, और फिर वो मैटर जो है वो एज अ सिविलियन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर एंटरटेन करते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हम एग्री नहीं करते हैं कि ट्रिब्यूनल कर्टेल करता है जुरिस्डिक्शन, बल्कि ट्रिब्यूनल की जो ओरिजिन है वो है ही इसलिए कि जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट को कहीं ना कहीं एफिशिएंट बनाया जाए। क्यों? क्योंकि ट्रिब्यूनल जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है, पहला। क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तीसरा। इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट को मानता है, काटता नहीं है। उनके जितने भी ऑर्डर होते हैं उनको अप्लाई करता है। और चंद्र कुमार केस 1997 में ये बात भी की गई कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना होगा तो कोर्ट जो है तब भी लगा देगी अगर आपने ट्रिब्यूनल के जज के साथ बदतमीजी की या उनका फैसला नहीं माना। तो जुरिस्डिक्शन को बढ़ाता ही है। इसके अलावा देखें कि कैसे बढ़ाया, तो हम देखते हैं कोस्ट एफिशिएंट मामले, कोस्ट एफिशिएंट जो है जस्टिस देता है, टाइमली जस्टिस देता है, पेंडेंसी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तालुका लेवल पर ही डील कर देता है। उसके बाद जो ट्रिब्यूनल है गांव में जाके मोबाइल कोर्ट क्रिएट कर देता है ताकि ऑर्डिनरी कोर्ट के अंदर पेंडेंसी ना बढ़े। इसके बाद कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएटरी मेजर, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, इनके मैकेनिज्म को यूज करके आपस में ही सेटलमेंट करवा देता है ताकि जो है ऑर्डिनरी कोर्ट का बर्डन कम हो। इसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है कि इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रिब्यूनल इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है? सबसे पहले है जो लीगल सर्विसेज एक्ट 1987। इसके बाद इसके अंडर अलग अलग तरीके के हैं, फैमिली कोर्ट, नालसा, सालसा, डालसा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कमेटी। इसके बाद जो है आपका अलग अलग तरीके के ट्रिब्यूनल है। एनजीटी के अंदर एनजीटी एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलग, स्टैट्यूटरी अलग। स्टैट्यूटरी के अंदर आ गया एनजीटी, आर्मी ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, रेलवे ट्रिब्यूनल। कॉम्पिटेंसी क्या है? तो 323 ए आर्टिकल के अंदर जो एडमिन और एडमिन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, बोथ सेंटर एंड स्टेट, तो जो सर्विसेज के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको जस्टिस मिलता है, उनका हनन नहीं होता है। दूसरा, जब हम देखते हैं कि कैट, तो कैट की कॉम्पिटेंसी इतनी है कि मोस्ट ऑफ द ऑफिसर जिनके ऊपर पॉलिटिसाइज एक्शन लिए गए थे उनको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जस्टिस दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रिब्यूनल की, तो एनजीटी की अगर हम एग्जांपल लें तो एनजीटी ने एनवायरमेंटल जस्टिस को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात की है। और उसी के एक्शन की वजह से आज हम देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर रीजन में स्टबल बर्निंग के ऊपर भी कानून आता है। दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर जो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कमेटी बनती है। एनजीटी की वजह से ही अरावली और वेस्टर्न घाट और हिमालयन स्टेट के अंदर जो रैंपेंट अर्बनाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी इफेक्ट होता है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं पार्लियामेंटेरियन का और सिविल सोसाइटी का अटेंशन भी है। तो इन तरीकों से हम बोल सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल की है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के अंदर काम रहकर किया है और ऑर्डिनरी कोर्ट का सम्मान भी किया है और उनका काम भी कम किया है। So now we have the questions. Consider the following statement. Pursuant to the report of Action Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. Okay. Constitution empowers Supreme Court, High Court to punish for contempt of themselves. Constitution defines civil contempt and criminal contempt. In India, the Parliament is vested with the power to make law on the contempt of court.
So I think 1 and 4 should be the answer. 1, 2, 4. ओके, हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता डिफाइन, तो सिविल एंड 2 3 सही है। और नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पावर सही है सुप्रीम टू नहीं सही? गलत है, हाँ 2 गलत है। 3 तो नहीं नहीं, 2 सही है, 3 नहीं है, 3 कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकंड बोला है ये ना, ठीक है। अंडर आर्टिकल 32 एंड कॉन्स्टिट्यूशन 50। डिफाइन, हाँ 3 नहीं है, सेकंड सही है, 4 सही है, 2 4 और 1 सही है, 1 2 हाँ 4। तो 2 के अंदर कहाँ पर दिया हुआ है? तो आर्टिकल 13 के अंदर, आर्टिकल 13 के अंदर दिया हुआ है, 32 के अंदर दिया हुआ है, 246 के अंदर दिया हुआ है, 226 के अंदर दिया हुआ है कि कंटेम्प्ट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने लिए। विद रेफरेंस टू द रिट इशूड बाय कोर्ट, mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. Any public-minded person can be petitioner to move, can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. तो I think second सेकंड गलत होना चाहिए, गलत है, पहला and करेक्ट mandamus है। will not lie against a private organization unless it is interested. हाँ पहली बात सही है। 1 और and any 3 public minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. हाँ सही, 1 and 3, 1 and 3. With reference to India, government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorney are excluded from recognition as advocate. अच्छा, Bar Council has the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges. तो I think पहला गलत है, दूसरा सही है। पहले वाले में लीगल फर्म्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स और लीगल फर्म्स एडवोकेट्स नहीं होते। बार काउंसिल द पावर टू ले डाउन, हाँ दूसरा तो करेक्ट है। पहला गलत होना चाहिए, हाँ ठीक है पहला गलत है, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉयर जो होते हैं वो भी एडवोकेट ही होते हैं। अगर आप पीएसयू के कॉर्पोरेट लॉयर हैं तो आप एडवोकेट ही हुए। With reference to Indian judiciary, any retired judge of Supreme Court can be called back to sit and act as Supreme Court judge by Chief Justice of India with the prior permission of President of India. सही बात है। Any हाँ retired judge can be called हाँ act as कर Supreme Court सकते judge, हैं, हाँ ad hoc basis पर, ठीक है। हाँ कर ही High सकते Court of India has the power to review its own judgment as the Supreme Court. कर ही सकते होंगे। ये गलत है। हाई हाई कोर्ट के कोर्ट पास कर ही सकते I होंगे। think नहीं सही है मेरे हिसाब से तो। हैज द पावर, अच्छा नहीं नहीं है। है, High Court has power to review its own judgment as Supreme Court does. मतलब जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उसकी बात हो रही है ना। नहीं नहीं, यहाँ जुडिशियल पावर की नहीं, यहाँ पे ये बात है हाई कोर्ट ने अगर पहले कोई डिसीजन दिया है तो क्या उस डिसीजन को आने वाले नए जो नए जज हैं उसको रिव्यू कर सकते हैं? तो कर तो सकते ही है। ठीक है एक बार डाल देना। हाँ, हाँ चेक करना पड़ेगा। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैनॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर एज पर द जजेस इंक्वायरी एट 1968। गलत। Constitution defines and give details or what constitutes incapacity and proved misbehavior of the judges of Supreme Court of India. गलत, गलत। सेकंड Detail of the process of impeachment सही है। are given in Judges Inquiry Act. हाँ सही बात है। Is the motion for the impeachment taken up for voting, law require motion to be backed by each house, supported by majority, and not, हाँ ठीक है, तो 3 and 4 is correct. 3 and 4. With reference to Constitution, prohibition or limitation or provision contained in ordinary law cannot act as prohibition or limitation of the constitutional power under Article 142. It could mean which one of the following? The decision taken by ECI while discharging a duty cannot be challenged in any court of law. Galat. Supreme Court is not constrained in the exercise of its power by the law made by Parliament. Okay, देखते हैं. In the event of grave financial crisis, President can declare financial emergency without consult from the cabinet. Galat. State legislature cannot make law on certain matter without concurrence of union. गलत। अपने मैटर पे तो बना ही सकती है। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट कंस्ट्रेंट। 142 कंप्लीट जस्टिस और आई थिंक एडवाइजरी की भी बात होती है। With reference to constitution, no high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. गलत। Allahabad High Court prime example है। An amendment to the constitution cannot be called
into question by Supreme Court of India. ये भी गलत है। बताओ औशिक। नो हाई कोर्ट हैज जुडिक्शन ऑफ डिक्लेयर एनी सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन इनवैलिड, गलत है। हाँ दूसरा भी कैनॉट गलत बी कॉल्ड है भी गलत है। है। नहीं। With reference to ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 का एक्ट है। As per the act, ग्राम न्यायालय can hear only civil cases, not criminal cases. गलत। The act allow local social activist as mediator. True. Only true. हम्म Which one of the following is a custodian? So Supreme Court. Power of Supreme Court to decide dispute between center and state. Original jurisdiction. Power to increase number of judges in Supreme Court vested in President. Sorry, Parliament. By act, by law. Provision to safeguard the autonomy of Supreme Court. While appointing the Supreme Court judge, President consult Chief Justice of India. सही बात है। Supreme Court judges can be removed by Chief Justice of India only. गलत। Salary of the judges are charged on consolidated fund. Legislature does not have to vote. तो 1 and 3 होना चाहिए। 4 क्या कह रहा है? All appointment of officer and staff of Supreme Court, the government only after consulting CJI. All appointment officer of the staff of the court done by government only after consulting the Chief Justice of India. True. So 1 and 3 and 4 होना चाहिए। 1 and 3 यानी यहाँ पर सारी अपॉइंटमेंट सीजीआई ही करते हैं, गवर्नमेंट का परमिशन बिल्कुल भी नहीं। Which of the following are included in the original jurisdiction of Supreme Court? Dispute between Government of India and one or more state? Yes. Other House of Parliament and that of state? नहीं. Government between Government of India and UT? Dispute between 2 or 1, 3, 4? हाँ 1 3 क्यों नहीं होगा? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है ही, दिल्ली वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई हाँ ऑप्शन में नहीं ना, 1 3 4 कहाँ है ऑप्शन में? अरे वही तो बोल रहा हूँ ना। यूनियन लेकिन टेरिटरी में क्यों होगा भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी लिखा हुआ है, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर थोड़ी लिखा हुआ है। हाँ ये बोल सकते हो कि यूनिटी लेजिस्लेचर। सुप्रीम अपने कोर्ट टेंडर्स एडवाइस टू प्रेसिडेंट और मैटर ऑफ लोअर फैक्ट, ठीक है, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव ऑन एनी मैटर ऑफ लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट? नहीं। इफ ही सीक्स सच एन एडवाइस, यस, ओनली द मैटर रिलेट टू फंडामेंटल राइट। ओनली 2 होना चाहिए। 2 with reference to लोक अदालत have the jurisdiction to settle the matter at pre-litigation and not those matter pending before any court. गलत। लोक अदालत can deal the matter which are civil and not criminal. गलत। Every लोक अदालत consists serving or retired judicial officer only and not any other person. गलत। None. Advocate General, state, appointed by President of India upon the recommendation of the governor of the concerned state. Advocate General, state नहीं, गलत है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। As provided in the CPC, High Court have original, appeal and advisory jurisdiction at the state level. Yes. यानी ये भी सीपीसी के अंदर नहीं है। हाई कोर्ट है ओरिजिनल, अपील एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, बट सीपीसी के अंडर नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। विद रेफरेंस टू लोक अदालत, एन अवार्ड मेड बाय लोक अदालत deemed to be decree of civil court, no appeal lies against there before any court, सही and बात है, family, हाँ, matrimony family disputes are not covered। नहीं ये गलत गलत है, है। दोनों गलत है। नहीं पहला तो सही है, अपील नहीं हाँ होती पहले, इनकी। हाँ पहले से नो अपील इज देयर, हाँ true। हाँ। जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सही बात थे। कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रोजेनिटर ऑफ हाँ, पीआईएल, हाँ सही दोनों। अच्छा पहला नहीं है इसमें, चीफ जस्टिस नहीं थे, पीएन भगवती थे यानी, ये भी देखना पड़ता है। हाउ मेनी कोर्ट इन इंडिया हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट? तो पंजाब, हरियाणा, बॉम्बे, केरला एंड कलकत्ता हाई कोर्ट, 4 होनी चाहिए। यहाँ पे 3 है। केरला वाला नहीं होंगे शायद। केरला का लक्षद्वीप होता है ना, कैसे नहीं है? तो 1 2 कलकत्ता, चंडीगढ़ वाला, फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट, हाँ उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट से, केरला हाई कोर्ट, हाँ और एक
कलकत्ता कोलकाता हाई कोर्ट, और कलकत्ता हाई हो कोर्ट। गया। और दूसरा तो यार ऐसे तो बहुत सारी है, मद्रास हाई कोर्ट, पुडुचेरी पड़ रहा है उसका। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन के पूछा अंदर नहीं। उसे लिखा है यूटी नॉट इंक्लूडेड। हाँ यार ठीक है, फिर 3 हो गए, यूटी नॉट इंक्लूडेड। हाँ, द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया is same as that of removal of judge of Supreme Court. True. After retirement, permanent judge of High Court cannot plead or act in any court or before any authority in India. सही बात है। अब ये भी गलत है, ये कैसे गलत हो सकता? रिमूवल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सही तो है पहला वाला। अरे दूसरा गलत कैसे हो गया? अब एक्टिंग पहले जज से की तरह नहीं रिटायरमेंट एक्ट नहीं करते कैन नॉट प्लीड और क्या? एक्ट इन एनी कोर्ट। हाँ ठीक तो है, सही है रिटायरमेंट के ये, बाद मैं वही कह रहा हूँ, सही है ये, गलत कैसे है ये? cannot plead or act in any court or plead, before हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। कोई एक्ट नहीं करेगा ना कोर्ट के अंदर में। नहीं एज एन परमानेंट जज एक्टिंग जज नहीं कर सकते क्या? नहीं, वो फिर ऐसा जज नहीं होगे ना आप, मतलब एड आप जो हॉक है या जज तो बुलाए जा रहे हो, आप प्लीड नहीं कर सकते किसी कोर्ट के अंदर। यहाँ पे तो मतलब केस लड़ने की बात हो रही है कि आप केस चेक कर जो है लेंगे लड़ने ये। चले गए। डाल देना उसे किसी को एक बार। इन इंडिया एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी। एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी, नहीं गलत। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। ना। हाँ बोलता है भाई, हर कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हर स्टेट में होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि एवरी स्टेट शुड हैव, शुड बोल रहा है, शुड, नहीं एवरी ये किस स्टेट गलत शुड। होना चाहिए। माफिल बताया तो था कि मतलब एवरी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाई कोर्ट टू बी एस्टेब्लिश इन एवरी स्टेट, बट पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड। ठीक है। बाकी इसको देख लेना, हो सकता है। A person who has held office as permanent judge of High Court cannot plead or act in any court or before any authority in India except Supreme Court. True. A person is not qualified for appointment as a judge of High Court in India